آج ہم نتھیا گلی میں ہیں اور یہ ہمارا 2 دن کا ٹرپ تھا. ہم اسلام آباد سے مری راستہ مری جو ہے وہ ہم نتھیا گلی میں آئے. تو یہاں پہ ہم نے کل رات کو نتھیا گلی کا جو بازار تھا وہ وزٹ کیا. پھر آتے ہوئے ہم نے پائپ لائن ٹریک تھا اس پہ ہم گئے اور پھر جو ہے وہاں سے ہم ایودھیا گئے. تو ہم ایک دن میں جو ہے نا ہم نے تقریباً 3-4 جو پوائنٹس تھے وہ ہم نے کور کیے. تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں اور کتنا ٹائم اسلام آباد سے یہاں تک آنے میں لگا. تو یہ پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں اس میں نظر آئیں گی. یہاں پہ کافی پوائنٹس اور بھی ہیں نتھیا گلی میں جو ہم انشاءاللہ سیکنڈ ڈے ہم وزٹ کریں گے ان کو. تو فرسٹ ڈے جو ہے وہ ہم مری سے اسلام آباد سے جو ہے وہ مری پہنچے. تقریباً اٹس آلموسٹ 1.5 hours ڈرائیو ہے اسلام آباد سے. تو مری ہم نے تھوڑی دیر اسٹے کیا وہاں پہ, پکچرز وغیرہ لی ہم نے. اس کے بعد پھر ہم ڈائریکٹ وہاں سے ایودھیا گئے. ایودھیا میں ہم نے تھوڑا سا وہاں پہ پائپ لائن ٹریک پہ ہم نے وزٹ کیا. پھر وہاں پہ ایک ٹنل ہے جو 1891 یا 1879 میں بنا ہے. تو وہ والا جو ہے ٹنل ہم نے وزٹ کیا. پھر تھوڑی سی پکچرز وغیرہ وہاں پہ ہم نے لی. وہاں سے پھر نکل کے ہم نتھیا گلی پہنچ گئے. رات کو ہم نے یہاں پہ اسٹے کیا. پھر ہم نتھیا گلی بازار میں گئے, وہاں پہ ہم نے ڈنر کیا, رات یہاں پہ گزاری. صبح کے ٹائم مارننگ اٹ واز اوسم مارننگ. تو یہاں پہ کافی زیادہ منکیز ہیں. پھر ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ منکیز کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا شوگر میلہ بھی کیا. تو ایک منکی تو ہمارے ادھر بالکنی میں آ گئے. تو اٹ واز کوائٹ فنی. تو ہم نے یہاں پہ جو ہے ہم اپنا سامان وغیرہ لے کے آئے تھے. چولہا وغیرہ مٹی کے تیل والا وہ بھی ہم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. تو ہم نے صبح کو اٹھ کے یہاں پہ ناشتہ وغیرہ ہم نے خود جو ہے وہ بنایا. آملیٹ تھا اور اس کے ساتھ چائے تھی. تو ہم آپ کو بھی یہی ریکمینڈ کریں گے کہ اگر آپ بھی کہیں پہ وزٹ کر رہے ہیں تو یہی جو انجوائمنٹ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ خود جو بھی کرنا ہے وہ آپ خود کریں, زیادہ سے زیادہ واک کریں, اور یہی انجوائمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے اور کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت زبردست ایکسپیرینس تھا اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا. تو اس کے بعد ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں, سیکنڈ ڈے ہے. تو ہم جائیں گے یہاں پہ ایک چرچ ہے اس کو وزٹ کریں گے. پھر اس کے بعد آبشار ہے یہاں پہ نزدیکی, وہ وزٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہم واپس اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے. تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں. تھینک یو. یہ سا پورا نمبلی مہرا ہے. یہ یہاں سے نمبلی مہرا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیک سائڈ میں نتھیا گلی اور یہاں سے نمبلی مہرا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ نیچے یہ سارا گاؤں ہے نمبلی مہرا, اور بہت سامنے وادی نیلم کے پہاڑ ہیں. اور یہ میرنجانی ٹریک جاتا ہے. کون سے والا پہاڑ؟ وہ جو اینڈ والے پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے, ادھر تک ویسے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ جا سکتے ہیں. آپ جہاں تک آپ جائیں کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں, میں نے کہا ادھر سے اندر سے جا سکتے ہیں کہ روڈ جا رہی ہے. وہ دیکھیں, وہ روڈ نظر آ رہی ہے. اور ادھر برف پڑتی ہے. صحیح. برف یہ تقریباً یہ پیچھے سردیوں میں تقریباً 5-6 فٹ برف یہاں پہ پڑتی ہے.
सही है, ज़बरदस्त। तो यहाँ से जो आबशार है वो कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन आपके लग जाएंगे 13-14 मिनट। 13-14 मिनट। रास्ता ऐसे ही है जैसे आए हैं? आगे इतना ख़राब नहीं है, पीछे की वजह से पीछे से थोड़ा ख़राब है लेकिन आप लोकल ही हैं यहाँ? जी जी इसी गाँव के। चलो सही है, फिर यार बड़ा ज़बरदस्त अच्छा गाँव है ना, प्यारा है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ज़्यादा कच्चे मकान नज़र आएंगे, क्योंकि अभी जैसे जैसे बातें बढ़ती गई है हर बंदे के पास पैसा होता जाए या नहीं होता जाए, लेकिन चंद आप बीच में भी देखें आपको कच्चे मकान बड़ी खूबसूरत जगह है ना, बंदा इतनी दूर नारायण यहाँ करान उधर जाता है ना, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, यकीन जाना बड़े दूर दूर से लोग इधर से आते हैं। वैसे अगर कोई महीना 2 महीने बंदे ने रुकना हो यहाँ पे मिल जाते हैं घर? जी सर, यहाँ पे होटल हैं आप, उसके होटल भी अलावा वैसे भी कच्चे घर मकान मिल जाता जी है? जी मिल जाता है सर, कच्चे मकान है आप जी यहाँ पे 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा चले, आपका नंबर हम लेंगे। इंशाल्लाह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना। ज़बरदस्त हो गया। यहाँ के सर जी, यहाँ पे सबसे बड़ी मजे की बात यह है ना, यहाँ से हमारे पास फ्रेंड के लोग पंजाब से हर जगह से आते हैं, यहाँ पे महीने के लिए 2-2 महीने के लिए स्टे करते हैं। यहाँ पे ये मॉल हो जाता है ना, जब बंदे आके रहते हैं ना, सुबह शाम वो विजिट करते हैं, हमारे मॉल में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का मॉल और नहीं नहीं बहुत खूबसूरत है यार, यकीन करें बहुत अच्छी जगह है। चलें जी चलें। ये बहुत ही खूबसूरत नेचुरल आबशार है और मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी यहाँ पे विज़िट करें। ये फ़र्स्ट टाइम है हमने विज़िट किया है यहाँ पे और ये इतनी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे नीचे जो है वो गांव है, हम आपको गांव भी दिखाएंगे। तो ज़बरदस्त जगह है। तो आप जब भी नथिया गली आएँ देखें, ये 2 घंटे की ड्राइव है मगर आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। आपको व्यू भी मिलेगा, आपको पानी भी मिलेगा, आपको पहाड़ भी और ये ग्रीनरी भी, हर चीज़ आपको मिलेगी और ये इट्स अमेजिंग प्लेस। ज़रा ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह और ये काफ़ी चढ़ाई है, थोड़ा ऊपर जाके हम देख के आते हैं ऊपर क्या है। तो यहाँ पे होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो रहाइश का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है और काफ़ी खूबसूरत जगह के साथ साथ यहाँ पे सफाई भी बनिस्बत मरी के यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह भी है, सफाई भी है और खूबसूरती के लिहाज से आई वुड रिकमेंड कि ये डेफिनेटली प्लेस टू विज़िट। तो आप लोग जब कभी भी कहीं प्लान बनाएं तो यहाँ पे लाजमी आप विज़िट करें।
इंशाल्लाह। देखें कैसी खूबसूरत जगह है। तो आज सवेर से हमारा यहाँ पे आने का मकसद जो है वो पूरा हो गया है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, एक दिन में बंदा जो है वो ये ट्रिप कंप्लीट कर सकता है। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। का मेन बाज़ार है, वहाँ से तकरीबन ये 20-25 मिनट्स की ड्राइव है और आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी जगह है। अभी हम ऊपर जाएंगे, वो कार्स वहाँ पे पार्क हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि ये अकामोडेशन की कोई कॉस्टिंग वगैरह वो भी चेक करके आते हैं इंशाल्लाह ऊपर से। तो चले आए इधर ऊपर। बडियाला, भिंडियाला, ये भी गांव, ये भी पूरा गाँव है। जहाँ से आप इंटर नहीं हुआ नमली मेरा में, वो गली जहाँ से, वहाँ से ये पूरा नमली मेरा शुरू। तो ये बोले गांव का रास्ता किधर से है? ये वाला वो रोड जा रही पहले जैसे जाता था, जैसे बातें ये रास्ता यहाँ से टूट गया नीचे ये खाई। तो लोग कैसे आते अभी जाते वो हैं? रास्ता जा रहा है, ठीक है, वहाँ से वो ऊपर है, वो नज़र आ रहा है। ये इधर ही हम जा रहे हैं। जी इधर ही जा रही है, हम यहीं की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रास्ता जा रहा है, ये आगे गाँव में चला जाता है, जैसे वो आगे निकल रहा है। नहीं वो अगर वहाँ से हमें गांव में जाना हो तो पैदल जाना पड़ेगा। नहीं गाड़ी जाती है, गाड़ी गांव में चली जाएगी, गाँव वो आराम मस्जिद के पास चली से जाएगी। कौन से तो नहीं जाएगी सर। अच्छा, जी जी, ये देखें ना, वो रोड जा रही है, वो नज़र आ रही है, फिर आगे वहाँ से गुजर के वो जा रही है, वो सामने से गुजर के वो, फिर वो वहाँ से उतर रही है। सही। और बर्फ़ यहाँ पे भी फुल होती है। फुल होती है, 500-600 फीट बर्फ होती है। ये जो तो ये सर्दियों में फुल स्नो से कवर है। कवर रहता है। जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के देसी के लोग हैं,
वो लोग सर्दी में अपना इंतजाम कर लेते हैं लकड़ी वगैरह का। वही ना, सर्दियों में तो आगे पीछे जाने के लिए कोई बाकी नहीं जो होगा। होते हैं ना जिनके पास आमदनी वगैरह ज़्यादा होती है सब वो यहाँ से तबाह चले जाते तो ये वाला बिंडियाला है और वो वाला गांव कौन सा है? हैं। मुख्तलिफ जगह के नाम है, जैसे ये बिंडियाला आ गया, वो चेक आ गया, फिर मंदरिया आ गया, इस तरह जगह के जो नाम है पुराने ज़माने के जो बुजुर्ग दादा बुजुर्ग उस टाइम के जो लोग हैं उन यहाँ पे वैसे कोई बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग का कोई मज़ार मजूर या कोई इस तरह? तकरीबन यहाँ पे नहीं है, बात की बैक साइड पे आता है। वो यहाँ से वो ये है कि वहाँ पे बंदा जो भी दुआ मांगता है यकीनन पूरी होती है। दूसरा वहाँ से ये क्या नाम है उनका? उस बंदे का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये मैंने खुद सुना है और ये तीनों सुना भी नहीं है, मैंने खुद इस चीज़ को आजमाया खुद कि वहाँ से जो भी मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला हर दुआ को देता है। और यहाँ से यकीनन गारंटी दे के कहता हूँ। हरनोई यहाँ से कितनी दूर है? तकरीबन यहाँ से अरनोई तक लग जाएंगे आप, आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लग जाएगा। चलें जी, चलते हैं। वही चलते हैं फिर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम पहुँचे हैं हरनोई झील पे, तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो हम पहले नथिया गली मेन बाज़ार से आबशार पे गए थे, नमरी मेरा। तो नमरी मेरा जो है वहाँ से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है गाड़ी पे, वो रास्ता ठीक है। फिर वहाँ से नमरी मेरा से हम निकल के अभी हरनोई पे आए। दरमियान से गांव है, गांव से गुजरते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो वो गांव वाला जो रास्ता है वो इतना अच्छा नहीं था। तो अगर तो वैसे तो गाड़ी पे आप आ सकते हैं, मगर ये है कि आपके टायर्स वगैरह जो है वो अच्छे होने चाहिए और कोशिश करें कि आप डे टाइम में ही वहाँ से निकलें, ठीक है, क्योंकि रात का जो सफ़र है वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो अभी हम पहुँचे हैं हरनोई में और ये हरनोई झील है और ये भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है, मगर ये है कि यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है, तो इतना कोई अच्छा नहीं है। अभी तो धूप निकली हुई है, तकरीबन कोई 26-27 डिग्री टेम्परेचर है। ये जुलाई का एंड है। तो बहरहाल ये ट्रिप हमारा काफ़ी अच्छा था। हमने आपको जो भी चीज़ें थी सारी विज़िट करवाई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी और आप भी यहाँ पे विज़िट करेंगे। थैंक यू।